Sri Ramcharan and NTR just proving that they are great fantasy. भाई ढेर लोग आपके बात सच में इतनी प्यारी लगती है, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि हमें तुमसे ऐसे मुझे और नहीं कर सकता प्लीज यार Local music, Colors TV, and Sunrise Radio. How are you guys? What an absolute good-looking audience! Wow, so many lovely faces. So for जितना मस्ती बर्मिंघम में होगा, लंदन वालों को पीछे छोड़ देंगे. What do you say, guys? And we are from Bristol. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Utilia Arena, Birmingham. On behalf of MPO Events and Dil Singh Tak, this is the finale for Kapil Sharma UK Tour 2023. Now they say that जब आप दिल लगा के कुछ करते हो, तो his heart, his soul, and everything he had into this amazing tour. And I can tell you firsthand, this gentleman has done everything from getting props ready, social media, talking to artists, making sure everyone's fed. So there was no job too big or small, and I think that humanity deserves a big round of applause. So of course, to put on a production like this, you can imagine the blood, the sweat, the tears, the chillana, the cheekna, the sleepless nights that has gone into it. So I think we should start the event by thanking the entire team that's come together to put this. So, abhi mujhe har kisi ka, put your right hand in the air for me. Abhi pata chala kaun sun raha hai, kaun nahi sun raha hai. Can we have all the house lights on, please? I want to see everyone's very pretty faces. How are you guys doing over there? Right. Now I want you to put your left hand in the air. Now I want you to put both hands in the air. I want you to put both your hands together. Right, keep this clap going as I introduce the team to you. So of course, as I've said, Dil Singh Tak, MPO Events. I'm a little bit biased with the next one, and I'll explain why in a moment. Leica Radio and Leica Radio Gold. Elite Creative Print. The yummy. Do you know what? I haven't been to Birmingham in a little while, and I genuinely thought Birmingham was really loud, really boisterous. आप लोगों की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, खाना खा के नहीं आए हो क्या? Who's from Birmingham? Much better. Who's from Leicester? That's all the Gujaratis in the house. Who's looking after the shops? Who's from out of Birmingham or Leicester? Wonderful. Anyone outside of the United Kingdom? Amritsar, love that. Kapil Bhatt is definitely going to love you. Anyone else out? Where are you from? Okay, well I promise you, if you make that much noise, he'll have to come out here as soon as possible. I won't take too much of your time. I just want to say a few more thank yous to whom this event wouldn't have been possible without. Punjabis in the field, Nepal Foods, Chef Line, Sira Cash and Carry, SNS Sharma UK Tour 2023 right here in Birmingham.
I'm here today with you all to make this evening even more beautiful and special and memorable. हम लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट का पिटारा, जिसमें होगी खूब सारी मस्ती, धमाल और आप लोगों से बातचीत। मुझे लगता है बर्मिंघम का मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बट मेरे आने से थोड़ी सी गर्मी तो हुई होगी। क्या बोलते हो आप लोग? यस 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 यस, कपिल आएंगे आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इतना क्रेज। कपिल। वेल, इतनी प्यारी ऑडियंस आई है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ लड़कियाँ इतनी खूबसूरत बैठी हुई हैं। गर्ल्स, यू ऑल आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स मेंस टू। आप लोगों को देखकर मुझे दो लाइनें याद आती है, सुना दी जाए? अगर आप थोड़ा सा काम डाउन करेंगे तो ही तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट? विल यू सपोर्ट मी? नो। If you will do like this, how it will go ahead, madam? You are saying no. We are here for you. Come on. We are coming all the way for you all. इतनी प्यारी ऑडियंस है, इतना प्यारा मौसम है। अर्ज किया है कुछ नशा तेरी बात का किसने है। अर्ज किया है? ये तो कुछ पहले नशा बताओ। इस हल्की सी बरसात का है, हमें यूं ही दीवाना मत समझिए। बर्मिंघम वालों, ये असर आपकी पहली मुलाकात का है। और 4 लाइनें उनके लिए जो मुझे देखकर यहाँ पर आहें भर रहे हैं। जुबान जब बंद होती है तो आंखें बोलती हैं, जुबान जब बंद होती है तो आंखें बोलती हैं, आंखें जब बंद हो। Wow, now we can see the excitement. All right, now we will take your more time. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी कपिल शर्मा की टीम से पंजाबी मुंडा राजीव ठाकुर। Let's go. जितने पैसे मिले उतने का म्यूजिक बजा। यस, क्लब एक्टर। उन्होंने कॉमेडी के लिए बुलाया, मुजरे के लिए नहीं, मेरे को यहाँ पे। वाह 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 वाह, ओए इतनी आगे तक लोग। पंजाबी तो हर जगह होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने डिस्टर्ब करना है बंदे को। प्रेमी प्रेमिका गार्डन में बैठे बीच में जाके बोलते पापड़ करा रहे। सत श्री अकाल, लव यू ऑल। वाह, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। दिल लगी पूरी। हाँ We want couple. यहाँ पे आज ऑडियंस इतनी खुश है राजी तुम्हें देख के। हाउ मेनी पंजाबी इन द हाउस? ये मैडम हमसे नहीं मिलना चाहती, अभी हमने देख लिया है। इतनी एनर्जी। तभी तो कहते हैं ना, लड़की लड़की की नहीं होती कभी। एक्चुअली पता क्या है, रीजन होता है। इसको कुछ मत कहो। आज ये पीछे किसी ने लड़की आई है। मैं सच्ची कहना चाहता हूँ, इतना एनर्जी पंजाबी मतलब धुआं करके जनरेटर स्टार्ट कर दे। Exactly. इतनी एनर्जी है ना, मैं यकीन जानता हूँ किसी की मोबाइल की बैटरी अगर चार्ज नहीं है, जब भी डालो पंजाबी के साथ बैटरी ऐसे चार्ज होगी आपकी। शर्त ये वो फीमेल नहीं होनी चाहिए, वरना उनकी अपनी बैटरी चली जाती है। और गुजराती कितने हैं? ये बात आई लव दिस। देखा, इतने से बैठे हैं, शोर पंजाबी से ज्यादा कर दिया इन्होंने। मैं सच बता रहा हूं, ये होती है प्योर गुजराती कौम, जिन्होंने जितने पैसे टिकट के खर्च किए उससे ज्यादा इन्होंने मुनाफा लेके जाना है यहाँ से।
इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। ये तो नुकसान बर्दाश्त ही नहीं करते। सच बता रहा हूं, बस घर में इनके डिटॉल की शीशी टूट जाए उंगली काट लेते हैं, नुकसान ना हो जाए डिटॉल का। आई लव यू गाइस। और पंजाबी तो बेचारे हमारे इतने भोले होते हैं ना, हाय 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 हाय। जेंट्स टॉयलेट के अंदर लिख के आते सुनीता आई लव यू। लेकिन बहुत मजा आ रहा है, इतनी ऑडियंस इतने प्यार से यहाँ पर आई है। लेकिन मैं एक बात से बहुत नाराज हूं आपसे, सब लोग बाहर आके ना बदल गए, अपने संस्कार भूल गए। कोई लेट नहीं आया, सब टाइम पे आ गए यार। तुम लोग इनके जैसे होंगे, आज की वजह से हमें टाइम पे आना पड़ा। असली पापा जी से माफी चाहते हैं, हम लोग लंदन से आए, आप यहां से आए हो, इंडिया से आए हो, तो हम कौन से फिरोजपुर नहीं रहते। लेकिन हैं, चलो शुक्र है सब लोग दूर दूर से आए हैं। ओए आ रहे हैं आइए प्लीज। आते लेट हैं आपकी दुनिया में लोग। या इल्जाम लगाओ, हालांकि चोटी बनाने में आपने भी टाइम लगाया उतना ही। आते लेट, कोई बात नहीं दुनिया में। टाइम पे आके वैसे भाई क्या कर रहा है, कोई 7 महीने पहले भी अगर पैदा हो जाए तो उसको 2 महीने हॉस्पिटल में रहना है। 9 के 10 महीने लगाओ पैदा होने में, दोनों टॉप के। वाह, अब बना, अभी भी लोग, अब कोई नहीं आएगा, दरवाजे बंद कर दो। लेकिन मैं आपकी सच में तहे दिल से एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये वो कौम है जो हिंदुस्तान से आकर यहाँ पर इतनी कामयाब हुई है कि जिन गोरों को देखने के लिए हम तरसते थे, आज वो आपकी सिक्योरिटी में खड़े हैं। कमाल कर दिया आप लोगों ने यार। ये देखो, ये पापा जी को अपना परिवार नहीं मिल रहा। पाजी इतनी बड़ी बियर लेके आओगे, कहां से मिलना आपको। अभी तो पी नहीं है, ये हाल है। पीने के बाद अपने अपनी बीवी को भूल जाना। बैठो सब बैठो। हाँ जी वेरी गुड। थैंक यू। पहले एक लड़की आई थी, कहती एक हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़े करो। मुझे अपनी सरकारी स्कूल की टीचर याद आ गई, जब होमवर्क ना करके तो ऐसे हाथ खड़े करो। लेकिन थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सब लोगों का कि आप लोग हमें इतनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दिल से। थैंक यू। यार इसको कोई शूट कर लो, ताकि मैं कपिल शर्मा को दिखा सकूं, भाई मेरी भी चलती है दुनिया में। नमस्ते जी। Oh my God, Rajiv, so good to see you. Yeah. You know what? People wanted to see you. Yeah. And I also wanted to see you, man. Yeah. You know, whatever the work you do, I just I love love you. ये क्या बकवास है? यही प्रॉब्लम है लड़कियों की। वैसे इतनी अंग्रेजी बोल, लड़का 3 शब्द अंग्रेजी के बोलते ना, आई लव यू, इनकी हिंदी निकल आती है। आप बकवास कर रहे हो। हिंदी निकल आई? यस। Whatever. पर इंग्लिश मुझे फिर भी तुमसे ज्यादा आती है राजीव। आई तो यहाँ फिर भी हिंदी वालों के साथ ही हो ना। इतनी अंग्रेजी आती थी तो आ जाती टॉम क्रूज के साथ यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पता क्या होता है, जब हम हिंदुस्तान में होते हैं ना, तो जो फ्रंट रो होती है ना, वो हमेशा सोफों वाली होती है। ऐसे लगता है अमीर लोग बैठे हुए। यहाँ पे मैं एक चीज से बड़ा खुश हूँ, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके यहाँ तक, सब एक जैसी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। सब एक दूसरे को जो बराबरी का दर्जा देते हैं ना, ये मैंने बाहर आके सीखा है। ये बहुत बड़ी चीज है। वरना इतना मुझे लगता है, जब पहली लोग जो सोफे में बैठे होते हैं ना, तौबा, इतना डर लगता है कि अमीर लोग हैं, हंसते ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं फंस गया एक बार। मैंने एक जोक सुनाया, आगे सोफे पे लोग बैठे हुए, अमीर लोग, एक सोफे पे एक आदमी। यू नो बिजनेस क्लास पीपल, अपनी बीवी आती है, प्लीज नेक्स्ट सोफा, वी आर अमीर। वो लोग, मैंने एक जोक सुनाया, हंसा ही कोई नहीं। मैं कहता सर हंसो, कहते बेटा तू सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने 2 जोक और सुनाए, मैं कहता सर हंसो, कहते बेटा तू सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने ताली बजाने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। अच्छा 6 महीने बाद उनकी शादी हो गई, मैं उनसे मिला, मैं कहा भाभी जी, कहते हनीमून पे। मैंने कहा आप, कहते बेटा अमीर लोग हैं। तो ये बातें सिर्फ मैंने इसलिए बता दी शुरू
एकदम स्टार्ट में शो के कि कुछ चीजें होती हैं जो आपके हिस्से की कोई नहीं कर सकता, जिसमें हंसना, मुस्कुराना, ताली बजाना शामिल है। ये आपके हिस्से का कोई नहीं कर सकता। बच्चन साहब ने, मैंने कहा शादी के बाद किसी ने पूछा उसको? आज भी पता फैन से मिलने आते ना अपने घर में जुहू में, अंदर से हाथ जोड़े आते हैं। मुझे लगता है पिछली बातों की माफी मांग रहे हैं। हमने नहीं कहा था, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को बहुत दर्द होता है। अच्छा, बीवियां वो हंस रही है जिनको पता है कि मर्द को दर्द होता है और उन्हीं की वजह से होता है। मुझे लगता है अब माहौल हो गया सेट। और स्टार्टर ने जितनी भूख लगवानी थी लगवा दी। लग गई भूख? सिर्फ मैडम आपके लिए मैंने 5 मिनट छोड़े अपने। जाओ दिए तो बुलाते हैं जी उस शख्स को जिसका 5 साल से यूके में इंतजार हो रहा था। वो शख्स जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि क्रिकेट में भी डॉन ब्रैडमैन एक ही हुआ है जिसने 99.99% की एवरेज से रन बनाए हैं, और हिंदुस्तान में वर्ल्ड का वो कॉमेडियन हुआ है जिसने 100% कॉमेडी की है और फैमिली कॉमेडी की। एक शब्द इधर का उधर नहीं किया। जिसने कॉमेडी के स्पेलिंग सी से बदलकर के से शुरू होते हैं। वो शख्स जो पैदा तो एक माँ की कोख से हुआ था, लेकिन आज जहां जहां उर्दू, पंजाबी, हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, हर उस देश का, हर उस कौम का, हर उस माँ का बेटा हो गया। None other than, and you are big applause, Kapil Sharma! Hello. Check. अगलावा मजबूरी नू आन जान दी मसूरी नू अगलावा मजबूरी नू आन जान दी मसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नैया दिल बाग बाग में टकराया दागा बोल दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा छुपावा रोके मेरे बोल जुदाइयां दी तेरी खबर की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बनियो जुदाइयां दी गल बात की वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। बड़ी नहीं बदन जन्म मिला तुमको, मन ने सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुली खुली सनम गोरी गोरी बाहें करती है यूं, हमें तुमने जब गले लगाए तुमको ठीक गए हम तो। हम्मा 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 हे हम्मा 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 एक हो गए
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मेरा माइक नहीं चल रहा है ये बना? इसमें ठीक आवाज आ रही थी, उसमें ठीक आ रही थी? नहीं आ रही आवाज? आ तो रही, और किधर ही चाहिए? कान के पर्दे फटवाने आपने? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू टू ब्रदर। शुक्रिया। मेरी किस्मत में लौंडे लपाड़े लिखे हैं। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। पहली महिला उठी है, वो भी बच्चे के साथ। हस्बैंड से भी कंफर्म कर लो एक बार, आई लव यू बोलने से पहले। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो चीज तंग कर रही है पेट में से निकाल दीजिए, बैठिए आराम से। शुक्रिया, थैंक यू। आप भी आए? अरे आपको मना किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, एक बार जोरदार तालियां। कैसे हमारा कोई रिश्तेदार बाहर रहता नहीं, बाहर के नाम पे मैं अमृतसर में रहता हूँ, रिश्तेदार फगवाड़ा, उससे आगे कोई गया ही नहीं। ये आप लोगों ने बुलाया तो हम लोग आ गए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं। आप लोग इतना खर्चा करके आए हैं। मेरी बीवी देखो, पति का शो है तो खुद ही लेट आ रही है। आजा आजा। ये पहली बार आई है मेरी धर्मपत्नी जी शो देखने, लंदन में भी थी कल। हेलो, मेरी माँ और मेरे बच्चों की माँ दोनों पहुंच चुके हैं, साथ में मेरा बड़ा भाई। और मुझे खुशी इस बात की है, पेट भी साथ में लेके आया। मेरा बड़ा भाई है, वैसे उम्र में बड़ा है लेकिन दिल से बच्चा है। इतना बच्चा है कि इसके पेट में भी 2 बच्चे लगते मुझे। ओए होए, पंजाब पुलिस पेट वाली मैंने पहली बार देखी है। मेरा भाई पंजाब पुलिस में है। आप लोग इतना खर्चा करके आए, उसके बावजूद हंस रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो सीरियसली आदमी का अपनी शादी पे ज्यादा खर्चा हो जाए ना, तो उसको 7 दिन अपनी दुल्हन ही नहीं अच्छी लगती, उसका हनीमून डिले हो जाता है। वो कहता है प्यार महंगा पड़ गया मेरे को। लेकिन आप लोग जो टिकट लेके आए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो लोग पास लेके आए हैं, आपके तो मैं चरण ही पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि देखो, टिकट वालों को तो पता टिकट कहां मिलती है, ऑनलाइन जाओ, पैसे दो, टिकट ले लो। ये पास वालों को जुगाड़ लड़ाना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइजर का ऐसा रिश्तेदार ढूंढते हैं जिसको वो मना ही ना कर पाए, जीजा टाइप। मेरी बीवी मेरे को बोल रही थी, कहती 5 पास चाहिए। पिछली बार बर्मिंघम वाले मामा जी आए थे ना, तो 5 किलो आम लेके आए थे। मैं कहा तू 10 किलो आम भेज, पास नहीं हमारे। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनने दी। क्या बोला उन्होंने? माइक चाहिए? यू वांट माइक? माइक दे दो मैडम को। घर पे पति को नहीं बोलने देती, बाहर कोई कलाकार आ जाए उसको नहीं बोलने देती। दे दो भरावा, माइक दे दो। नदी आत्मा तड़पती रहनी है। जीती रहो, खुश रहो। साथ में मोबाइल भी होना, स्नैपचैट भी। जीती रहो मेरी महारानी। माइक है हमारे पास स्पेयर? डू वी हैव स्पेयर माइक? माय इंग्लिश इज फिनिश नाउ। थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू मैम, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है, आप लोग इतना प्यार देते हैं। हाँ जी, बर्मिंघम वाले ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। शो 3 घंटे का, जूड़ा बनाने में 4.5 घंटे गए होंगे आपको कम से कम, है ना? ऊपर से कई मैडम हमारे आते जाते रहते हैं। अच्छा, सबको पता होता है इनकी सीट कहाँ पे है। जानबूझ के इन्होंने अपने सूट दिखाना ना सारे। 4 बजे के बाद बारिश होगी, वैसा ही होता है हमारे वहां मुंबई में भी। एक्यूरेट होता है, जो बोलेंगे एकदम उल्टा। अगर बोला ना कि एक दिन किसी ने बोला कि आज शाम बारिश होगी, उस दिन नोटबंदी हो गई। मैं कहा ये तो था ही नहीं नगर में। मैंने, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत शहर है और मैंने यहाँ पे लोगों के अपार्टमेंट देखे अपने होटल के बाहर। पता ही नहीं चलता लोग अंदर रहते हैं, इनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बालकनी में कपड़े नहीं सुखाते। हम तो मुंबई शहर में रहते हैं, आप अपनी खिड़की का पर्दा उठाओ, सामने कच्चे बनियान टंगे मिलते हैं, आपको पता चल जाता है कि कितने घर बनियान के छेद में से आप मेंबर गिन लेते हो घर के, कि 6 लोग हैं कि 7 लोग हैं। ओ भाई साहब, शुक्रिया। पता नहीं चला मुझे वैसे आपने क्या बोला, और जो भी बोला है दिल से निकला आपके। पैक वैक लग गए? आज तो बाहर क्लाउडी वेदर है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाओ, कोई नहीं। अपने लिए लाए को इधर, गेस्ट के लिए भी लाते हो। इंडिया से जो हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कल्चर नहीं है ना एक दूसरे को मिलने को, आसपास पड़ोस वालों को। तो हमारे बुजुर्ग जब आते हैं ना अपने बच्चों से मिलने, उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि ना तो कोई ठेला निकल रहा है सब्जी वाला कि बंदा उसी से मोल भाव कर दे,
मन लगाए तो किसके साथ, मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले, है ना, साफ सुथरा। यहाँ मैंने अंग्रेजों का देखा, बगल में रह रहे हैं 25-25 साल से, एक दूसरे को जानते नहीं। हमारे बुजुर्ग तो एक दूसरे को इतना पहचान लेते हैं ना कि औरत को पीछे से देख के बताते हैं गर्दन पे तिल, दविंदर की बीवी जा रही है। हमारे लोग, मैं हमेशा जब भी कभी बाहर जाता हूँ मैं हमेशा अच्छी चीजें नोटिस करता हूँ वहां की। मेरा ये मानना है कि जब भी आप बाहर जाओ कुछ अच्छी चीजें वहां से अडॉप्ट करो, आप कुछ अपनी सिखा के आओ। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बताया, कहता पाजी आप अपने बच्चे को डांट ही नहीं सकते इधर। मैं कहा अच्छा, कहता हाँ वो दो अपने लैंडलाइन में से 9 नंबर ही खींच के निकाल दो। और हमें आदत नहीं है, हमें तो बचपन में हमारे डैडी 2 थप्पड़ मार के उठाते थे, तब जाके हमें यकीन होता था कि हमारा बाप, और बाप को यकीन होता था मेरा बेटा है। तो मैं क्या आपका बच्चा शरारत वारत करे, आपकी मन ना सुने तो करते क्या? वो कहता पाजी हम ना इंडिया में 2 ट्रिप रखते हैं साल के, एक बैसाखी पे एक दिवाली पे। कहता इधर आ गए, वहां पे भी कुत्तों की बड़ी इज्जत है सियाटल में। ये पांडे हमारा ड्रम पे नहीं जो आप अमेरिका में तो फ्लाइट में भी ले जाते हैं, हमारे इंडिया में कुत्तों को पार्क में नहीं जाने देते बेचारों को, तो इंसानों की पार्क होती है वही काफी नहीं पड़ती। मुंबई में इतनी मुश्किल से रहते हैं हम लोग, इतनी पॉपुलेशन है, तो हमारे कुत्ते फ्लेक्सिबल बड़े इंडियन, वो फिर किसी पार्क में घुस जाते हैं, जिनका कुछ नहीं होता वो सब कुछ उनका होता है। वो फिर कुत्ते यूं करके जो गेट के नीचे से निकलते हैं ना, उनकी कमर में ना नोरा फतेही की कमर से ज्यादा लचक होती है हमारे कुत्तों में। बाहर आके बड़ी चीजें पता चलती हैं। पांडे को यहाँ पे आके पता चला कि कुत्तों के सैलून भी होते हैं, कुत्तों का फूड अलग होता है। कहता पाजी मेरे को तो पहली बार पता चला, मैं तो अदरक वाली दाल खिलाता रहा उसको, जो खुद खाता है वही अदरक वाली दाल कुत्ते को। 4 साल बाद उसका कुत्ता भी अदरक जैसा हो गया टेढ़ा। पर एक बात है, हमारे इंडियन कुत्ते, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हल्दी वाली दाल खा खा के ना अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाए, गांव के 4 कुत्ते इकट्ठे हो जाए ना, चीता पीट देते हैं ये लोग। पर आप लोग इस देश में आए हैं, मैं एक बात ये कहना जरूर चाहूंगा कि हमारे देश की तरक्की में जो आप लोगों का हाथ है, इस देश की तरक्की में, प्रगति में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कामयाब हैं हमारे लोग, तो बड़ी खुशी होती है। मैं लंदन गया, वहां पे इतने गुजराती, यहां पे आया इतने पंजाबी, सारा हिंदुस्तान तो इधर बैठा है, उधर वोट डाल डाल के सरकार कौन बनाई जा रहा है। यूके वालों को ना इंडियन लोगों को बड़ा भरोसा है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री भी इंडियन बना दिया। ये बंदा अच्छी बात है। उनकी सास ना, ऋषि सुनक जी की सास सुधा मूर्ति जी कुछ दिन पहले हमारे शो पे आई थी, बड़ी प्यारी लेडी, बड़ी पढ़ी लिखी। मैंने कहा आपके तो दामाद यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको तो जहाज भेजते होंगे। वो कहती नहीं नहीं मैं अपनी टिकट लेके जाती हूँ। मैं कहा अच्छा। मैं कहा मेरे पड़ोस में एक आंटी थी, उसका दामाद हवलदार था, वो तो मोहल्ले से वसूली करना शुरू कर देती थी। तो आपका तो प्रधानमंत्री है। ओह, यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी है, ये इन मुल्कों की एक खासियत है, यहाँ पे टाइम की बड़ी कदर है। मैंने देखा सारे चेहरे बिजी, आज तो चलो आप शो देखने आए, नहीं तो मैंने जितने लोग देखे ना हैं, मैं लेट आया You are late. नहीं, जिसको लेके आए पहले उनको भी पेमेंट किया ना, फिर उनको भी भेजना होता ना, नहीं तो फिर बुरा मानते हैं। मैं सुबह 4 बजे तक यहाँ हूँ, आप बैठने वाले बनो आप। मैं क्या, मैं शो खत्म करने के बाद जागरण शुरू कर दूंगा। मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ। जुड़ा आपने बहुत अच्छा किया है, 2 बार आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया मैंने, अब खोल लो, जुड़ा उतार के पर्स में रख लो प्लीज। ओह, यहाँ पे देखा हर आदमी बिजी है, जिसको देखो कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग फॉर मीटिंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम मीटिंग। हर बंदा बिजी है, चेहरे बिजी हैं, एक्सप्रेशन ही कोई नहीं। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, तो मैं मुंबई में रहता हूं, पहले मैं अमृतसर में पला पड़ा हूं। वहां पे हमारे शहर में कहां नहीं, किसी को नहीं कोई, किसी से पूछ लो कहां से आ रहे हो, मैं भाजी रोटी खा के। जा कहां रहे हो, मैं रोटी खाने। शाम को क्या करेंगे, रोटी खाएंगे। रात को फिर सो जाएंगे, सारा दिन रोटी थोड़ी खाई जाती भाई, काम ही कोई नहीं है। ये आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ पे खींच के ले आता है। पहली बार हम आए हैं। अगर प्रैक्टिकल बात बोलूं, सच्ची बात बोलूं, एडवांस हमने 3 साल पहले ले लिया था, बीच में कोरोना आ गया, ऊपर से ये दिल पाजी हमारे जो प्रमोटर हैं, इनकी याददाश्त भी नहीं गई। ये हमें रोज मैसेज भेज देते थे, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप पे कौन सा खर्चा आता, फूलों का भेज देते हैं। याददाश्त बड़ी कुत्ती चीज है। एक दिन ये हमारा पांडे ना ड्रम वाला, इसके सपने में भगवान आए, कहते तू आदमी बड़ा अच्छा है और तूने दारू बड़ी पी जिंदगी में, 75 साल की उम्र में तेरे साथ एक चीज बुरी होगी, या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे, बता क्या करूं। कहता भगवान जी हाथ कम कापा दो मेरे, याददाश्त को कुछ ना करना। कहता क्यों।
कहता अगर हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मेरा एक पैक नीचे गिर जाएगा ना, अगर मैं भूल ही गया मैंने बोतल रखी कहां है तो फिर तो काम खराब है। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ना पिछले साल हम लोग कनाडा करने के लिए गए शो, तो वहां पे तब नया नया कोरोना खत्म ही हुआ था, और वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी किया होगा शायद, उन्होंने अपने लोगों को ना पैसे बांटने शुरू कर दिए, पैसे बांट दिए। अब अंग्रेज लोगों के पास पैसे आ गए, खर्च कहाँ करे, बाहर तो कोविड लगा हुआ था, तो बैठे रहे घर पे, जैसे कोविड खत्म हो अपने पैसे खर्च करने निकल पड़े वेकेशन पे। कोई आए ना एयरपोर्ट पे, ना कोई लगेज लेने वाला टोरंटो एयरपोर्ट पे, ना कोई चेक इन करवाने वाला। मुझे तो टेंशन हो गई, मैं जहाज भी ना खुद ही उड़ाना पड़े। हम 2-4 पैक लगा के जहाज भी उड़ा लेते हैं, हमारी खासियत है ये। सीरियसली सूटकेस ही नहीं मिल रहे थे एयरपोर्ट पे। एक आदमी मिला कहता मेरा सूटकेस नहीं आया, दूसरा मिला कहता मेरा सूटकेस नहीं आया, एक सूटकेस मिला कहता मेरा तो आदमी नहीं आया। एक गुजराती मैंने देखा 2 सूटकेस लेके जा रहा था, मैंने कहा आपके कैसे आ गए? कहता मारू एक छूटू से दूसरों ने 2 लेने जाऊं छू मैं। ये बड़े एक तो यूके में आके ये खासियत बड़ी, पता नहीं चलता कौन आदमी लंदन से है, कौन स्कॉटलैंड से है, कौन है ना एम्स्टर्डम से है, सारे एक जैसे उतने तैयार होते हैं, ना ही पता चलता करते क्या होंगे, है ना। हमारे लोगों की एक खासियत है हिंदुस्तान की, हमारे लोगों की खासियत है, हमारी अपना एक कल्चर है, हर स्टेट का एक कल्चर है, एक खुशबू है। आप इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ जाओ, आपको पता चल जाएगा हिंदुस्तान में कहां कहां से स्टेट के लोग बैठे हैं। जहां से आपको थेपलों की स्मेल आ रही समझो गुजराती बैठे हैं, कहीं से इडली सांभर वहां पे भी बैठे हैं, थेपला के जन्मदाता। कहीं से इडली सांभर की स्मेल आए पता चल जाता साउथ इंडियन बैठे हैं। वहां पे मैं इंडियन लोग भी बड़े देखे बीच पे घूमने आए, गोरे गोरियां वहां पे बीच बैठे हैं, इंडियन आदमी आया, बच्चे 2 उंगली पकड़ी हुई, बीवी को चटाई बिछा दी बीच पे, 2 भुट्टे ले दिए छल्ली, और खुद जाके जो गोरी किताब पढ़ रही थी ये आके गोरी की किताब पढ़ रहे हैं। गोरे लोग नहीं करते, ये अपना अपना टिफिन लेके आते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं किसी के डिब्बे में क्या है। हमारे लोग थोड़े शरारती होते हैं, जैसे मैंने कहा भोले होते हैं, भोले। अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ना, साथ में 2 बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी साइड मिरर में से बगल वाली स्कूटी पे जा रही है और उनको देख लेते हैं। एक बच्चा मोटरसाइकिल में पेट्रोल की टंकी पे ऊपर बिठाया होता है, वहां बिठा सकते हैं, यहाँ पे तो है। तो जो बच्चा पेट्रोल की टंकी में बैठा होता है ना, उसकी चड्डी इतना पेट्रोल सोख लेती है ना कि माँ जब धोने के लिए रगड़ती है ना, चड्डी आग पकड़ लेती है कभी कभी। एक बच्चा आगे बिठाया, एक बीच में बिठाया, पीछे बीवी बैठी है, साइड में फिर उसको ताड़ देते हैं। बीवियां भी बड़ी स्मार्ट होती हैं, ये बातों बातों में बगल वाली को भी सुना देती हैं। ध्यान से चलाओ, 3 बच्चे हो गए, मोटरसाइकिल तुम्हें चलाना नहीं आता। आदमी कहता 3 बच्चे कहां से हो गए? 2 हैं, एक जो तुम उसके साथ सोच रहे हो ना, मैंने वो भी गिन लिया है। तो मैं हस्बैंड वाइफ पे मुझे लोग बोलते हैं तो आप तुम बड़ा मजाक करते हो, मैं बोलता हूँ यार ये जिंदगी में यही सब कुछ है और क्या है। आप जितना हंसी खुशी जिंदगी निकल जाए अच्छा है, मैं जितना मर्जी हंसी मजाक करूँ मियां बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर, पर शुक्रिया। जो प्यार और समर्पण की भावना हिंदुस्तानी औरतों में अपने पतियों के लिए है, पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है। अपनी अपनी बीवियों के लिए तालियां बजा सकते हैं आप, सारी तालियां बीवियों ने बजाई, पतियों ने बजाई। तो बजा भी रहा है वो बीवी को देख के बजा रहा है, मैंने नहीं बजाई तो ये बजा देगी घर जाके। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पूरे विश्व में आप देख लो, कभी करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, कहीं नहीं मनाया जाता। क्यों? हमारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। जो लोग हिंदुस्तान से नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि करवा चौथ का व्रत होता है कि सारा दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, चांद निकलने पे पानी मुंह लगाया जाता है ताकि पति की उम्र लंबी हो। पर इसमें भी धीरे धीरे बदलाव आता है समय के हिसाब से। कैसे आता है? पहला करवा चौथ, 3 महीने शादी को हुए, करवा चौथ आ गया, बीवी ने व्रत रखा है, थाली पकड़ी हुई है। पति का जरूरी नहीं रखना, पति वैसे रख लेता है। पत्नी बोलती बेबी तुम क्यों रख रहे हो, प्लीज तुम तो कुछ खा लो। मेरा चांद भूखा है, मैं कैसे खा लूं? बड़ा ड्रामा होता है पहले साल। पूरी चांद निकलने का वेट कर रहे होते, भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ता, अभी भी नहीं आया, 2-2 मिनट बाद ऊपर जाता है। 3-4 साल निकल जाते हैं, जब एक आध छोटी मोटी प्रोडक्शन हो गई, बच्चा हो गया, औरत बिजी हो जाती बेचारी, बच्चों में, पति को भी देखना, अगर वर्किंग वुमेन है तो वो भी देखना। लेकिन फिर सैल्यूट है इनको, व्रत फिर रखती हैं, हाथ में थाली पकड़ी है। इस बार थोड़ा कम हो जाता क्रेज, फिर खुद ही पूछ लेती बीबी जाके देखो ना जरा चांद कभी निकलेगा। आदमी बोलता है वो बता रहे टीवी में 9-10 बजे बीच में कहीं निकलेगा। थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर 10 साल हो जाते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े भी शुरू हो गए, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, औरत की जुबान में भी तलखी आ गई, थोड़ी मर्द की जुबान में भी तलखी आ गई। फिर वो कहती है अब पता करो जी चांद कब निकलेगा। आदमी पहले 1-2 आवाजों में तो बाहर नहीं आता है,
चांद का पता करो कभी निकलेगा। चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं। जब निकलना आएगा निकल आएगा, मेरे से क्या पूछ रही है? औरत को बड़ा गुस्सा आता है, ये तेरा ही बेड़ा करने के लिए रखा मैंने, मुझे कोई शौक नहीं भूखी रहने का। अभी पेप्सी पी ली ना, तेरा भस्म करके रख दूंगी तुझे मैं। पूरा गुस्सा होता है उसको। शुक्रिया। फिर एक वक्त आता है, आपकी मान लो 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, मोटा मोटा पकड़ लो, 75 के पापा जी, 75 की माता जी, 150 साल का जोड़ा। आदमी को उस समय परवाह नहीं रहती, उसको लगता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ। अब बिजनेस से वो रिटायर हो चुका है, बच्चों को दे चुका है, नौकरी से रिटायर हो चुका है। हमारे पंजाब साइड, दिल्ली साइड आपको पता है बुजुर्ग टाइम पास कैसे करते हैं? मोहल्ले के बाहर चारपाई डाल लेते हैं, फिर जो उनकी पुरानी क्रश उनकी निकलती हैं उनको देख देख के बेचारे पुराने कोई टाइम याद करके अकेले। अब बुजुर्ग आदमी देखना, आप जब हो जाता है ना बुजुर्ग आदमी, वो कभी कभी अकेले मुस्कुरा के ना अपने आप को जवाब देता रहता है। This is true. That is true. That is true. Certainly. आप ये भी देखना, कभी जो आदमी होता है ना उस बुढ़ापे में ना, उसका मुंह ऐसे ऐसे हिलने लगता है। औरत का मुंह ऐसे हिलने लगता है। वो कह रही होती बात तो सुनो, कहता ना सारी उम्र तो तूने सुनी नहीं। बुजुर्ग आदमी बाहर चारपाई डाल के बैठ जाता है, टाइम पास करने के लिए। क्या करें बुजुर्ग, वो टीवी नेटफ्लिक्स थोड़ी देखते हैं हमारे बुजुर्ग। वो तो गली में से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार के टाइम पास कर लिया, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश। उनका 75 साल की उम्र में तब भी बेचारी औरतें, मैं सैल्यूट करता हूं, तब भी व्रत रखती हैं। अंदर से पूछ रही हैं, बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, के पापा चांद नहीं निकला। सारी उम्र का भरा पड़ा पापा बाहर बैठे, जवाब नहीं देता है। चांद नहीं निकला। बाल चले गए बेचारे के बुढ़ापे में। वो कहता क्या? चांद नहीं निकला। कहते ये तेरी माँ का सर है। ये तेरे चांद के चक्कर में मेरा चांद निकला है। और कौन सा चांद? बाबा जी का ठुल्लू, क्या निकलेगा? अरे सच्ची बात है, पता है आदमियों के चांद निकल आते हैं, औरतें कभी नहीं गंजी होती, पता है। साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, एक आपकी बीवी। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, हमारे लोग 25-50 साल एक ही बीवी के साथ निकाल देते हैं ना, तो फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। पर ठीक है, मजे में रहते हैं, ऐसी बात नहीं, बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल कल्चर है। अंग्रेज लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते। ये वैंकूवर में मैं और गिनी घूम रहे थे, तो 75 साल के पापा जी अपनी वाइफ को किस कर रहे हैं, सड़क पे खड़े खड़े। मैं कहा ये वाला सीन तो हम टीवी पे भी नहीं देखते माँ बाप के सामने, यहाँ पे ऊपर नहीं चल रहा है। तो ये मुझे कहती इधर देखो, 75 साल का आदमी देखो, 80 का होगा, अपनी बीवी को देखो किस कर रहा है। मैं कहा तूने 75 साल देख लिए उसके, बीवी उसकी चौथी है, वो नहीं देखी तूने। ऐसे क्यों लगा? वो कहावत है ना, एज इज जस्ट ए नंबर, ये इन लोगों ने सही इंप्लीमेंट किया है। ये लोग लगे हुए हैं काम पे, ये नहीं देखते उम्र क्या है। अभी कल ही मैंने देखा लंदन में एक बुजुर्ग आदमी ट्रैम में बच्चा लेके जा रहा था। मैं कहा हाउ स्वीट, ग्रैंडफादर? कहता नो फादर। इन लोगों में शादी का प्रोसीजर बड़ा इजी है ना, इसलिए 3-4 कर भी लेते हैं। गोरे लोग जाते हैं, लड़की अपनी गाड़ी में जाती है, अकेली लड़का अपनी गाड़ी में जाता है, चर्च में जाते हैं, फादर के सामने वो स्टार्टर लेते हैं गाल पे, मेन कोर्स कभी कभी पहले कर चुके होते हैं। हमारे रस्में बड़ी हैं, इतनी रस्में, आदमी शादी के बाद सोचता है कि बस और नहीं कर सकते शादी, पहले रोका करो, सगाई, ये सब, वो शादी, बारात, मिलनी, उसके बाद घर आके भी रस्में नहीं खत्म होती। घर आके माँ पानी मारने लगती है, पानी बार उसके बाद मिला के, और दूल्हे के दिमाग में होता है कि कब हम अपने, है ना, जाके रेस्ट करें। उसके बाद परात लेके आ जाएगी बुआ लड़के की माँ, आजू वो खेलते, रिंग ढूंढेंगे। उसको बड़ा गुस्सा आता है बूढ़ी बुआ की, तुम वो तो अभी रिंग ही ढूंढ रही है, हमारा तो टाइम है, हमें तो जाने दो। रिंग ढूंढते रहेंगे कितनी देर। दूल्हे के दिमाग में होता है कि रिंग कोई भी ढूंढ ले, खत्म हो सब जल्दी, है ना। अब
यहाँ पे तो शादी 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाती है, हमारे तो आपको पता 7-7 दिन शादियां चलती थी गांव में, कितने आगे लोग आ गए, पूरी 4 पहिया डालते, सारा है ना रिश्तेदार लेटे हुए हैं। जाते जाते कमरे में जाने का टाइम आता था, फिर कोई बुजुर्ग खांस देता था, फिर दूल्हे को लगता था कि ताया खांस पड़ा रहा है, ताया जी दवाई चाहिए। ताया कहता कंजरो खांसी तो मुझे 25 साल से हो रही है, तब तो किसी ने पूछी नहीं दवाई, उस समय पूछी होती ना तेरा काम खराब होता ना मेरा होता। 2:30-3 बजे सारी रस्में खत्म करके जब अपने कमरे में जाने लगता ना दूल्हा, फिर दूल्हे का भांजा आ जाएगा, बहन का बच्चा छोटा सा, मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। उस दिन पहले दिन दूल्हे को अपना भांजा जहर लगता है, कहता 2.5 घंटे घोड़ी में बैठ के पीठ तोड़वाई मैंने, सोने का टाइम है, मम्मी के साथ सोएगा। क्योंकि रस्में हमारे यहाँ बड़ी हैं, रस्में बड़ी। आपने कभी किसी पीटर को देखा, जॉन को देखा यहाँ पे शादी के 1 दिन पहले चड्डी पहन के हल्दी लगा के बैठा हो? हमारे इंडिया में होता है, इतना बड़ा 6 फुट का आदमी हल्दी लगा के यूं बैठा होता है, लगता ही नहीं दूल्हा, ऐसे लगता है बड़ा वाला मुर्गा मैरिनेट करके रखा है। मुर्गा ही होता है बेचारा, कटना ही होता है उसको। डोंट, ठीक है बोलेंगे आप लोग? 5 बार आपने बोलना है, उसके बाद राज जी का जलवा। हाँ जी, स्केल देना। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। क्या बात है? तालियां होनी चाहिए। एक बार आओ। आए। I missed it. How many Punjabis in the house? Wow, that's a lot. क्या बात है यार, पंजाबी लोग हमको बड़े पसंद है। पंजाबी ना हर चीज में आगे हैं, लेकिन एक चीज है, चिल्लाए जिग्नेश 15 लोग आ गए। हमसे कहता है सुवाच है, सुवाच है, सुवाच है। हमने कहा दोस्त सुवात न थी, सुवाच है। शौचालय किधर है मित्र, हमको जाना है। तो एक बंदा हमको कहता है यू कैन गो देयर, देयर इज द रेस्ट रूम। हमने कहा हम रेस्ट रूम काहे जाएंगे यार, हमें आराम नहीं करना है, हमें तो धूम धड़ाम करना है। हाय हाय हाय, जॉक्स का पिटारा भी लाए हैं हम, सुनाए? ओके ओके लेट्स गो। तो हमें बताइए, बीवी, हस्बैंड वाइफ इतने सारे बैठे हैं यहाँ पे, इसके लिए डेडिकेटेड, बीवी
और सूरज में क्या समानता है? बीवी और सूरज में क्या समानता है? ज्यादा देर तक दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं। ये बात में तो सच्चाई है ब्रो, है कि नहीं? है कि नहीं? या अच्छा, अब ये बताइए कि मां और बीवी में क्या अंतर है? मां और बीवी में क्या अंतर है? देखो दोस्त, मां बोलना सिखाती है और बीवी, यू गॉट दैट राइट। अच्छा, एक और ऐसा ही, वन फॉर द रोड। हमें बताइए, टूथब्रश जो होता है ना, टूथब्रश दुनिया की सबसे बदतमीज चीज है। बताइए क्यों? सबके मुंह लगता है यार। हाय, क्या बात है, क्या बात है। ओह, वैसे आपको बताएं, हम जब यहां पर पहुंचे ना, हमने देखा कि हरियाली बहुत है यहाँ पे, ग्रीनरी लॉट्स, देख के बड़ा खुशी हुआ। लेकिन ग्रीनरी देख के पता हमने सबसे ज्यादा किसको मिस किया? फुलझड़िया। फुलझड़िया हमारी भैंसिया। कम ऑन यार, ना, उसको नहीं लेके आ पाए यार। लाने का कोशिश हमने किया था, वो एयरपोर्ट पे रोक लिए उसको। कहते हैं कि ये भैंसिया का वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये प्लेन में नहीं जाएगी। हमने तुरंत वहीं पे उसका 5 किलो दूध निकाल दिया। हमने कहा लो, इसका वजन भी कम हो गया, तुम भी दूध पियो। नाच लो, इतना नाचता ना शो में भी। कपिल शर्मा शो को उसने डांस इंडिया डांस बना के रखा होगा। इतना ही शौक है नाचने का, तो एक काम करो ना, घर से उमराव जान की ड्रेस पहन के रेखा बन के क्यों नहीं आ जाते यहाँ पर? क्योंकि क्या है दोस्त, हाँ? रेखा भी ना अमिताभ बच्चन के लिए आती है। ये ठाकुर टाइप के लोगों के लिए। आपको पता है, एक बार इनको गब्बर सिंह का फोन आया। वो कहते हैं कि भाई मुझे मालूम है कि तुम वो वाले ठाकुर नहीं हो, फिर भी तुम्हारे हाथ काटने का दिल कर रहा है। तुम कटवाओ, मेरे हाथ कटवाओ, जुबान कटवाओ, मैं जाता। मैं तो तुम्हारे लिए तालियां बजवाने आया था, नहीं बजवाता। जाओ। नहीं ब्रो, मजाक कर रहे हैं यार। ताली बजवा रहे हो तो बजवाओ, बजवाओ। आप तो जानते ही हैं, अलग अलग कैरेक्टर करने वाले कपिल शर्मा शो के द सुपरस्टार सस्ते गणेश आचार्य के लिए। क्या? सस्ते गणेश आचार्य। हम सस्ते गणेश आचार्य। हाँ जी। तो भैया महंगे साहब के बारे में हम भी आपको बताते हैं। हुआ क्या, ये अपने दिल पाजी है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइजर, इनका फोन आया हमको। कहते हैं कि यार ये कपिल शर्मा शो कर रहे हैं यहाँ पे, राजीव ठाकुर को बुक कर लिया है, सर आपको भी बुक करना है, तो आप कितने पैसे लेंगे? हमने कहा देखो यार, राजीव ठाकुर हमारा दोस्त है, इसे जो भी पैसा दे रहे हो उससे 500 रुपया ज्यादा हमें दे देना। वो कहने लगे कि सर फिर आप 500 रुपया ही ले लीजिए, क्योंकि राजीव ठाकुर तो फ्री में आ रहा है। महंगा आदमी। तो भाई दुनिया की जितनी भी महंगी चीजें हैं, बेशकीमती चीजें, वो फ्री आती हैं। चाहे वो आदमी की सांस हो, या चाहे हवा हो, तो फ्री आता है। आहा, क्या बात बोले। हाँ, सब फ्री आता है। आना पड़ता है भाई लोग, यूके है, इतनी मोहब्बत मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर मैं पैसे मांग लूं, ये मुझे बुलाए ना, मेरा तो काम खराब हो जाता। एक बात याद रखना दोस्त, हाँ, काम उनका खराब होता है जिनके पास काम होता। आप लोग ने देखा ही होगा कैसे शो में आके बेशर्मी से अपने दोस्त से ये काम मांगते रहते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, अपने दोस्त से काम मांगना बुरी बात? अपने दोस्तों से काम मांगना बुरी बात है? आपके भी दोस्त सबसे पहले आपके पास ही आते हैं ना, यहाँ पर जब यूके आते हैं। दोस्तों से काम मांगना बुरी बात नहीं है। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो मेरे दोस्त से काम मांग मांग के हिट हुए हैं। सुना भाई, ये पक्का पंजाबी है, क्योंकि गुजरातियों को पंच नहीं आते, गुजरातियों को सिर्फ बिजनेस आता है। अरे रहने दो, एक बार खड़े हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। खड़े हो जाए भाई, खड़े हो। ये है जी, इनको लगता हम हिट नहीं है, ये ज्यादा हिट है। हम नहीं है वो भाई। अरे मित्र, हाँ यार, आओ। ये एक बात बात समझो, शुक्र है तुम्हारा कि तुम कोई तो इधर बैठे हो, जज बन के अर्चना पूरन सिंह हमारी। एक
मेरे वो भी सुन रही है। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते तू तबला कल लगाया? हाँ। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे एक लम्हे वो भी पूरा सुन रही थी। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी। ये आप देखना, पहले पहले इनकी ताली ऐसे बैठती ना, उसके बाद जब पैसे लुटाने लगते लोग इनकी ताली रिवर्स होने लगती है, नोट पकड़ पकड़ के बैग में। एक आदमी को मैंने देखा वो उल्टे तरीके ताली बजा रहा। मैंने कवाली वाले से पूछा, मैंने कहा इसकी ताली नीचे को क्यों जा रही है?